Welcome back, guys. आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM लाइव ब्रॉडकास्ट फ्रॉम नॉटिंघम. दिस इज मी ज़की खान, पॉइंट टू बी नोटेड शो में, जिसे आप सुनते हैं एवरी वेडनेसडे 6 till 8 PM. एंड आई सेड बिफोर, हमारे साथ आज 3 गेस्ट हैं. हरीश सूद, सुषमा रावत एंड पायल सूद. ये हमारे जो आज के गेस्ट हैं, ये एक फिल्म बनाई गई थी यहाँ यूके में, और के नॉटिंघम में ही ये पूरी फिल्म पिक्चराइज हुई by Harish Sood Films, and Harish is the main person sitting in front of me. I don't know why you're staring at me, mate. Me on your show and your beautiful, wonderful studio, Zakir. Thank you. You like the studio? Lovely, absolutely lovely. Are you gonna take our studio in future in your future project? Of course. We will forget the studio. We will also have you, because as Bail has introduced me to you, I think you're proper casting material for hero roles. So, casting material. Okay, yes, I like that. Yes, I like that term. But it depends on the story. Well, it depends on the role. Yeah, we'll have to do a. I'll let you decide that if it suits me or not. But still, I'll go through the script first of all. That's the only thing I haven't done in my entire life, like acting. Because I think that I can't face the camera. Oh, really? Yeah. A bit shy. Well, don't worry. Once we film you, then we will make you. You'll be able to do that. So yeah. My shadow will work maybe. The director's way will make you perform. Don't worry. Yeah. So Harish, what is about your film? This documented film. Give us a little bit introduction about your film. Okay. To start with. Okay. So hello to all of your listeners first of all, and thank you so much for having me on your show. So the film is a documentary film. I'm a documentary filmmaker, so I don't really make fiction, but hopefully at some point, that could also, well, I say hopefully, but I mean, it could change because filmmakers, sometimes change paths. Now, the film is about me, and it's about me being single at 40, well, I'm 47 now. We started shooting this film when I was 44, and we had... So really, it took 3 years to complete this film? Well, yes, it took 3 years, but quite a lot happened in the middle of those 3 years. And because of what happened in those 3 years, it became a slightly extended project. And the other side of it was, Zakir, that because we wanted it to be of a certain quality, we didn't compromise on that. So if it took a little bit longer, that's fine. Right. Are you following? We wanted it to be a really high-end quality documentary, which you would see, for example, on Channel 4. So it's equivalent of. Because basically it was going to be on a bigger screen, so it has to be. Of course, and it's on the cinema. To meet that standard. Of course, yeah. So the story's about me, and I say it's about me, but it becomes then about everybody. And I'm not going to give too much away tonight because everybody keeps asking me to tell them what the story's about. There's only 2 people in this room who've seen the story. That's myself and... Actually, 3, sorry. Forgive me. Of course you've seen it. You were the celebrity guest at the red carpet. Excuse me. Well, it's a compliment. And so yeah, you ask me. Because I can keep talking, Zakir. I'm just one of these... directors. No, that was the basic question about your introduction and obviously about the film, a gist of the film. But we'll move on to Sushma Rawat. And I would like to know from your end, what do you say about the film and give your introduction about what's your role in the whole project? Hello, everyone. And again, thank you for having us. And thank you, Zaki. My role in the film is I'm a film analyst. So basically, I'm going to capture people's reactions after they have watched the movie and probably pop some questions across to see what they think about the film, because film it's a documentary. So there are real people talking about their relationship experiences and stuff. So to see how they felt about the film and if this is what they expected when they actually came to watch the movie, is exactly what they were expecting. So I'm gonna talk to people, capture their reactions and feedback on the film. Right. So obviously it's going to be something which is going to happen after watching the movie. Yes. And people are going to give their feedbacks. Yes. Okay. So whatever you have heard about the story, and what is your feedback at the moment? Would like to give your feedback about it, what you have heard about the story. Culturally, we are
I can relate to the communities where like culturally born, like especially me as a first generation Indian here. So culture हमारे साथ चलता है, and we are quite embedded to it, and this is how we are raised. So how relationships are molded and work for us, keeping our culture there, keeping our values there, and how it evolves with the time, with the present time, and especially to see our kids when they are like second generation here, how they perceive relationships and all. So I think that's the interesting aspect. I'm looking forward to it, and I'm there are pretty a lot sure. of South Asians, which is the 5th generation at the moment in the UK. Yeah. So obviously we are connected with our culture. हमारा जो कुछ भी वहाँ होता है यहाँ पर हो रहा है. जैसे मैंने शो स्टार्ट किया तो आई डिड मेंशन कि हमारा DNA तो चेंज नहीं हो सकता. हमारे जीन्स में वो कुछ ना कुछ तो वो कीड़े रह ही जाते हैं. एसेंस हमेशा रहेगा, ऐसे ही रहेगा. और हम चाहते हैं हमारी जनरेशंस आगे ले जाएं हमारे कल्चर को, हमारे रूट्स को लेकर जाएं. वी ऑल विश कि ऐसा ही हो. But let's see. पायल, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो. पायल की जो स्माइल है वो बहुत खूबसूरत है, पायल की तरह. पायल, बताएं आपका क्या रोल है इस फिल्म में? सबसे पहले थैंक यू और धन्यवाद और शुक्रिया जो आपने हमें बुलाया और मौका दिया कि एक हम साउथ एशियन फिल्म जो नॉटिंघम में बनी है, नॉटिंघम फिल्म मेकर के द्वारा बनी है, उसकी पब्लिसिटी कर सके. तो फिल्म पब्लिसिस्ट वो होता है जो फिल्म की पब्लिसिटी, मार्केटिंग, कवरेज, मीडिया, PR, रिलेशनशिप बिल्डिंग और इवेंट मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करता है. और जो मेरा फोकस हमेशा रहा है ऑन इवेंट मैनेजमेंट पिछले 8-9 सालों से, जैसे आप जानते हैं, राइट फ्रॉम द साउथ एशियन हेरिटेज फेस्टिवल टू द फेस्टिवल्स इन द काउंसिल to events in the Indian Community Center and then following on now at the temple. हम कोशिश करते हैं कि कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करते रहें. और जब हरीश ने इस फिल्म के बारे में कहा तो मुझे लगा कि इस फिल्म का एक्सपोजर ऑल ओवर नॉटिंघम, क्या पूरे UK में होना चाहिए, क्योंकि इस फिल्म से लोगों को रिश्तों की अहमियत के बारे में पता चलता है. और ये एक कॉन्सेप्ट भी है, क्योंकि मैंने ये फिल्म ऑब्वियसली देख चुका हूँ. यू इनवाइटेड मी एज अ गेस्ट, और मैं कभी भी अपने ओपिनियंस और रिव्यूज़ नहीं देता, बट आई हैव सीन द फिल्म एंड आई एम गोना टेल ऑल लिसनर्स आउट देयर कि ये फिल्म में ये एक बायोग्राफी है एक शख्स के बारे में जिसने अभी तक शादी नहीं की, और वो क्यों नहीं की, कौन सी स्टेजेस से वो होके गुजरे, उन्हें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आई, क्या डिफ़िकल्टीज आई, क्या प्रेशर था, और कहाँ पे जाके उन्होंने अपनी लाइफ, उनकी चेंजेस होती रही. सो देयर इज़ अ लॉट टू बी सीन. Obviously, we are not gonna go into detail, but obviously, as you guys are here for particularly to talk about this film. Sure. तो मज़ीद आप पायल इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? ये फिल्म सबसे पहले तो इसकी खास बात ये है कि ये हमारे लोकल ने बनाई है. तो अगर हम लोकल आर्ट को प्रमोट नहीं करेंगे तो आई थिंक हम अपने कल्चर के साथ फेयर नहीं होंगे. तो सबसे पहले एक लोकल आर्ट को प्रमोट करना है, लोकल फिल्म मेकर को इनकरेज करना है, और एक क्वालिटी जो फिल्मिंग की है वो लोगों को एडुकेट करना है कि यू हैव दिस ऑप्शन एज वेल आफ्टर एक्सप्लोरिंग योर अदर एवेन्यूज जो आपकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर है. दूसरा, रिश्तों के ऊपर जो इतनी खास इसकी डेफिनेशन है कि शादी क्यों नहीं की या की, वो तो बाद की बात है, पर शादी के बारे में लोगों के ओपिनियंस जो हैं उसको कैप्चर जो किया है उसकी एक इंटरेस्टिंग एंगल वो है. खुल के आए हैं, इसमें कोई शक नहीं पायल, वो बिल्कुल खुल के आए हैं. और कुछ सोचने वाली बात है, एक बैरिस्टर और एक डॉक्यूमेंट्री और फिल्म बना रहा है. सो कम गोइंग बैक टू हरीश, योर प्रोफेशन इज एज अ बैरिस्टर, यू ऑब्वियसली इन अ लॉ इंडस्ट्री, और you are in media as well now. You also made a documentary before, so this was your second. I was doing a bit research on you. So first one was successful, as it says, and second one is hopefully going to be very successful. Why did you become an actor? Means like, क्या हुआ क्या? एक बैरिस्टर, एक ऑफिस में बैठ के काम करने वाला, और एकदम से एक्टर बन गया और उसने फिल्म बना डाली. What inspired you? Okay, तो अब मैं हिंदी में बोलूँगा क्योंकि आप सब लोग बोल रहे हैं हिंदी में. तो एक्चुअली आपकी जो रिसर्च है उसमें एक थोड़ी सी एडिशन मैं बोलूँगा आपको,
क्योंकि You want to add anything? हाँ जी, क्योंकि 2000 जो मेरे ड्रामा स्कूल का बैकग्राउंड है वो मैं 2020 साल हो गए 2004 में गया था. Okay. सो एक्टिंग तो मैंने बहुत पहले से ही सीखी थी एक्चुअली. Okay. सो मेरा जो बैकग्राउंड है, मैंने लॉ किया था यूनिवर्सिटी में पहले. मेरी पहली डिग्री लॉ है. ठीक है. और उसके साथ लॉ एंड लैंग्वेजेस, स्पेनिश, इटालियन और फ्रेंच. तो मैं 3 साल बाहर रह के आया था फ्रांस में. तब मैंने आके फिर अपना लीगल करियर शुरू करने से पहले ही ड्रामा स्कूल में 1 साल बिताया था. और तब से मैंने एक्टिंग सीखी है. सो ये नहीं है कि मैंने अपनी लीगल लाइफ से कुछ ताल्लुकात छोड़ दिए और मैंने सोचा एक दिन ऑफिस में उठ के कि चलो मैं अब अपना एक्टर बनूंगा. नहीं. So 2004 में आपने एक्टिंग सीख ली थी और उसके बाद लेके आपने जो पहली बनाई वो कब बनाई थी? और वो तो अभी 2021 में बनी थी. 21 में बनी थी. So obviously इसमें इतना बड़ा गैप आ गया. You never thought to do something? I did a few different projects, but actually ये एक किस्म से आप बोल नहीं सकते कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ इसमें. एक आई सपोज इन सम वेज यू कुड से यस आई एम एक्टिंग, पर डॉक्यूमेंटेरियन मैं प्रेजेंटर का रोल ज्यादा निभा रहा हूँ एक्चुअली. तो एक्टिंग मैं कर चुका हूँ कितने साल पहले. और फिर मैं छोड़ के आ गया था लंदन को और अपनी लीगल लाइफ में बिजी हो गया. पर साथ ही साथ मैं कुछ ना कुछ करता रहा जो मीडिया में था, चाहे रेडियो में था या कुछ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड BBC में है कितने साल पहले. जो केवल वसीर आप जानते होंगे, उनका नाम उनका मैं जर्नलिस्ट हुआ करता था 30 साल पहले. माय गॉड. अभी याद आ रहा है. माय गॉश, लवली मैन, वी मस्ट पे आवर रिस्पेक्ट्स टू हिम. सो आपका सवाल जो है कि मैंने लीगल लाइफ छोड़ी नहीं और अभी भी नहीं छोड़ी. तो साथ ही मैं a film. Why this biography? What inspired you to let's make this film or documentary? Because I think अपनी स्टोरी बताने में और ही मज़ा है. एक तो आप जानते हैं अपनी स्टोरी को, और दूसरी बात ये है जो एक्सपीरियंसेस मेरे साथ हुई जी, उनको मैं शेयर करना चाहता था. जैसे पायल ने भी बोला कि हमारे कल्चर में कई कुछ प्रिस्क्राइब किया जाता है. प्रिस्क्राइब का मतलब, जैसे मुझे उर्दू हिंदी में लफ्ज़ नहीं पता, बताया जाता है कि तुम्हें यही करना है. गाइड किया जाता है. गाइड भी नहीं मैं बोलूंगा, क्योंकि कल्चर का नेविगेटेड है ना कि आपको ये करना है. डायरेक्ट किया जाता है. क्योंकि गाइड हो तो फिर थोड़ा सा फ्रीडम होता है. हमें तो बताया जाता है कि तुम्हारी एक दिन शादी होगी, तुम एक दिन डॉक्टर बनोगे, तुम एक दिन बच्चे तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास एक दिन बहुत बड़ा घर होगा. और शायद लाइफ में नहीं होता ये. फिर क्या होता है, फिर तुम कम्युनिटी में फंस जाते हो, फिर तुम्हारी लाइफ ऐसी चलती रहती है. तुम एक जो आइडियलिज्म है ना, उसके सॉरी मेरी हिंदी बीच में थोड़ी सी टूट जाती है, पर वो आइडियलिज्म को तुम फॉलो करते रहते हो कि मुझे अपनी लाइफ ऐसी बनानी चाहिए. और उसके साथ ना हम पीछे रह जाते हैं कि हमें क्या चाहिए लाइफ में, व्हाट डू वी वांट. तो ये इसलिए मैं ये बताना चाहता था क्योंकि मैंने कोई आइडियलिज्म फॉलो नहीं की. और आपने जैसे फिल्म में देखा कई कुछ हुआ मेरी लाइफ में, बदलता रहा, सिचुएशंस आते रहे, चैलेंजेस आते रहे, जो भी आता रहा. और मैं ये दिखाना चाहता था कि वो जो मेरी व्यू से नॉर्मल लाइफ है, उसके अलावा बहुत कुछ है जिंदगी में करने के लिए और देखने के लिए. बहुत कुछ हुआ. एंड यू हैव टू बी ब्रेव इनफ हाँ जी टू शोकेस दैट. हाँ जी. अगर आप इतने ब्रेव इनफ नहीं है, क्योंकि बहुत सी आप फैक्ट्स को छुपा भी सकते थे. बट आई हैव सीन एज यू आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, डिड यू एंजॉय इट? आई सेड नो, बिकॉज इट वाज एन एंटरटेनमेंट फॉर मी, इट वाज इंटरेस्टिंग फॉर मी. उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यही थी कि आपने बहुत से ऐसे फैक्ट्स हैं, हमारी सोसाइटी के फैक्ट्स हैं जो आपने उजागर किए हैं. And you have highlighted them. And most of the time in society, we do not discuss about it. We put them under the carpet. So, इस चीज़ को आपने, you have mentioned many things which were not supposed to be, if you wanted, but as if you're making a biography, you can't hide anything. And plus, the people in there जो interview दे रहे थे आपके बारे में, तो वो आपके बारे में बहुत कुछ जानते थे. So, they did mention number of things. Yeah, it was interesting. So, coming back to Payal, एक हिम्मत चाहिए अपने बारे में पब्लिक के सामने खोल के बोलने की. मुझसे कहे तो मैं तो कभी ना कुछ कहूँ. अपनी डार्क सीक्रेट्स बताना, सबके सामने शेयर करना, एक जिगरा चाहिए और एक हिम्मत चाहिए करने की, और उसके साथ उसकी एक मीनिंग बनानी कि इससे तुम क्या सीख सकते हो. शायद चाहे उसमें से डायरेक्टली सीखो या इनडायरेक्टली सीखो. इट इज ए एफर्ट कि आप उसके थ्रू एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हो.
सो आई थिंक हर एक इंसान को, जिसके बच्चे हमारे 4th 5th जनरेशन के यहाँ पे हैं, हर एक पेरेंट को और हर एक इंडिविजुअल को जो शादी कर रहा है या नहीं करना चाहता, उसको ये डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए ताकि वो कुछ सीख सके, समझ सके और उसकी अहमियत की एक एनालिसिस कर सके. अच्छा, अभी आई एम गोना आस्क यू दिस क्वेश्चन सुषमा, कि ये मुझे बताएं कि पहले दौर में कहा जाता था कि दौर की नहीं, अभी रिसेंटली एक कॉन्सेप्ट था कि शादी जो है वो जाके इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश जाके नहीं करनी चाहिए. यहाँ के बच्चे हैं तो इफ़ दे आर ब्रिटिश और ब्रिटिश मेंटालिटी जैसी होती है और उनको करना चाहिए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है. और आज ये सवाल पैदा हो रहा है कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. सो व्हाट इज़ योर एनालिसिस ऑन दैट? देखिए, हम तो उसी तरह से बड़े हुए हैं कि शादी एक इंस्टीट्यूशन है एंड हमारे पेरेंट्स उस इंस्टीट्यूशन में, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स उस इंस्टीट्यूशन से आए हैं. तो एक सोसाइटी में एक एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है कि भाई ये इंस्टीट्यूशन बहुत वर्क करता है, फॉलो दिस. बट यहाँ कहते हैं ना, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी होती है. जी, किसी के लिए काम करती है, किसी के लिए नहीं करती है. तो ये फ्रीडम ऑफ चॉइस और फ्रीडम ऑफ लाइक एक्सप्रेशन वाली बात यहाँ आती है कि हाँ, आप अपनी लाइफ को कैसे देखना चाहते हो और आप क्या हो. अगर नहीं होती है तो आप दूसरी कर लें, नहीं होती फिर तीसरी कर लें, क्योंकि जैसे आप जॉब करते नहीं चली, बस दूसरी जॉब कर ली, तीसरी कर ली. नहीं, शादी एक ऐसी चीज है, आप ट्रायल एरर नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते हो. नहीं करते हैं, बहुत से लोग करते होंगे. वही मैं कह रही हूँ, कोई चीज किसी के लिए काम करती है, कोई चीज किसी के लिए काम करती है. अब आई हैव बीन मैरिड फॉर 28 years. अब आप कहिए लकी या जो भी है, इट्स वर्क फॉर मी एंड आई थिंक मेरे जैसे बहुत लोग होंगे. ऐसे कौन से होंगे कि आज तक किसी ने कहा हो कि हमारी सोसाइटी में पाया कि मैं शादी करना ही नहीं चाहता, या तो वो लोग होंगे जिनकी शादी नाकाम होगी, वो कहेंगे यार अब शादी नहीं करनी, ठीक है. तो उसके अलावा कितने लोग कहते होंगे कि दे आर नॉट मैरिड येट और कहते होंगे कि मुझे शादी करनी ही नहीं है. परसेंटेज है. एंड आई थिंक जैसे जैसे वुमेन इंडिपेंडेंस बढ़ रहा है, जैसे जैसे मेन की कंफर्ट लेवल बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ देयर लाइफस्टाइल, सो जो लेडीज का भी बढ़ रहा है, I think the percentage of not wanting to get married is also increasing. So based on that factor कि वो अच्छा है या बुरा, जी, वो इस फिल्म से आप इसको ब्रेक कर सकते हो. और एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगी, मैंने जिनको भी बोला है जाके देखें, मैंने उनको ये ज़रूर बोला है कि वापसी में अपने पार्टनर के साथ सवाल जवाब ना करें, और अगर सवाल जवाब करें तो दूसरा बंदा चुप करके हूँ हाँ करे. अच्छा, वरना वो शादी गई. अच्छा, यानी कि आप कह रही हैं लोग ना जाएं फिल्म देखने? नहीं, मैं कह रही हूँ लोग जाएं ताकि वो सीख के आए कि उसको आगे कैसे बचा सकते हैं. नहीं, वो सीखेंगे तब ना जब उन्होंने शादी मतलब ना की हो, है ना. वही लोग ना जिन्होंने शादी ना की, जिनकी हो चुकी है तो वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते ना. आजकल एक्सपोजर बहुत. हरीश, क्या सलमान खान से इंस्पायर तो नहीं हुए थे? उसने आज तक शादी नहीं की और सब उससे पूछते हैं कि यार तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की, और मजाक में टाल देता है. नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अच्छा, हम ना इसे एक और ना बाजू का इसे कहते हैं कि इंसिडेंट हमारी लाइफ का एक हुआ था, तो यू वुड से यू आर लकी इनफ कि आपकी लाइफ में इंसिडेंट हुआ ही नहीं ऐसा कभी. सॉरी, मैं समझा नहीं आपकी बात. शादी का इंसिडेंट. हाँ, आई सी. अच्छा. तो आप सब लोगों की बातें मैं सुन रहा हूँ, और आप जो बोल रहे हैं, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं कि शादी एक इंस्टीट्यूशन है और थोड़ा सा इसके ऊपर हमें प्रेशर नहीं, मतलब कि एक्सपेक्टेशन होती है ना. मैं ये सुन रहा हूँ कि यही इस डॉक्यूमेंट्री में जैसे पायल ने हम हाईलाइट किया है कि हमें प्रिस्क्राइब किया जाता है, मतलब बताया जाता है कि यह तुम्हारा रूट है. तो एक्चुअली हमें, आई एम ट्राइंग टू नॉट से टू मच डॉक्यूमेंट्री के बारे में, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा पीछे ही रखूं. पर ये सिर्फ एक टॉपिक है फिल्म में जी, इसमें और भी बहुत टॉपिक्स हैं. There's a lot of elements, yes. हाँ, बहुत ही एलिमेंट्स हैं. पर एक बात मैं बोलूंगा, देखो कितनी अच्छी बात है कि फिल्म के बाद ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम. और मुझे किसी ने बोला बाद में कि हरीश, यू आर वेरी बोल्ड. जो कुछ तुम बोले उस फिल्म में, तुम्हें जैसे जिगरा. अभी तो हमने भी कह दिया, तो मुझे खुद को लगा नहीं, क्योंकि मैं बी ब्रेव इनफ. पर ब्रेव बोलो या फिर बोलो, देखो एक उम्र आ जाती है जिसमें मैं अब ये सोचता हूँ, पहले से भी शायद मैं ये ऐसा ही था थोड़ा सा, कि आई वांट टू अपोलोजाइज फॉर हु आई एम. हमें ना सिखाया जाता है कि तुम्हें ऐसे बनना है, और अगर तुम ऐसे नहीं बने
तो थोड़ा सा तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है अपने आप को। देखो मैं 47 का हूँ, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी चुका हूँ, और मेरे पार्टनर, गर्लफ्रेंड्स, जो भी आई हैव हैड एक्सेट्रा, बट आई हैव हैड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, सब कुछ और मुझे कोई इसमें एम्बैरेसमेंट नहीं है, क्योंकि मैं उसका credit, I take ownership of that. Yeah, like, I don't know how you say in Hindi, in ownership कैसे बोलते हैं, like मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। you own that. I'm happy about it. You own experience के साथ। अक्सर मैं ये बात कहता हूँ कि लाइफ में कभी भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए। That's what I believe, क्योंकि वो इस वजह से नहीं करना चाहिए कि जो होता है वक्त हालात के हिसाब से होता है। That was meant to be, it had happened. So there is no point of regretting on that. तो हमें जैसे बताया जाता है शादी कर लो, और तब मैं सोचता हूँ कि चलो 20 साल पहले अगर मैं शादी कर लेता, ये नहीं मैं बोलता it could have been bad, it may have been good, पर अब मैं जो सोचता हूँ और जैसे का इंसान मैं बन चुका हूँ, हम बदलते हैं। इसमें मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हम बदलते रहते हैं, हम ये एक्नॉलेज नहीं करते। और देखो, अगर मैं कोई लड़की को भी देखूँ जो मैं 20 साल पहले पसंद करता था जी, और 10 साल पहले ही पसंद करता था, फॉर एग्जाम्पल, वो बिल्कुल ही अलग टाइप ऑफ वुमेन होगी। समझ गए ना? हमारा टेस्ट बदलता जाता है, क्योंकि हमें इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, इमोशनली और चीज़ें पसंद आती है। तो ये जैसे आपने बोला डॉक्यूमेंट्री में, कई लोगों ने ये भी मुझे बोला है कि ये डॉक्यूमेंट्री देख के उनको थोड़ा सा डर लगा, क्योंकि उनके अंदर की आवाज़ बोलने लगी, और वो अंदर की आवाज़ वो लोग बोलना वो चाहते नहीं कि बोले, क्योंकि एक्चुअली उनको लगता है कि अगर हम इस टॉपिक के ऊपर बोलेंगे तो हमारी रिलेशनशिप्स खराब हो जाएंगे, या फिर खराब नहीं होंगे, या फिर हमारा इनर फीलिंग बाहर निकलेगा। समझ गए ना? जैसे कई लोगों ने बोला अपने फीडबैक में जब फिल्म खत्म हुई थी कि हमें लग रहा था जैसे हम ही अंदर से बोल रहे हैं, पर कि हम यह कहना चाहते थे और आज तक हम ये कह नहीं सकते। हाँ जी। सो कई इसमें टॉपिक्स है। शादी तो एक बिग सब्जेक्ट है, और शादी का ये भी इसमें आता है, क्योंकि देखो आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम ग्रेटफुल टू यू। पायल को पता है आज मेरी मम की 3री फ्यूनरल की एनिवर्सरी है, और आपके शो में आने में मुझे आई एम रियली ग्रेटफुल। आपने मुझे ये बात कहने के लिए मौका दिया। जी ये मोस्ट वेलकम। हाँ जी, थैंक यू। और मैं इसलिए मम्मी की बात कर रहा हूँ क्योंकि मम्मी का एक हिस्सा है इस फिल्म में, जैसे आपने देखा है जी। और एक बात मैंने देखी, जब मम्मी गुजरे, हम इंडिया गए उनकी एशेज लेके, तो उसका सोल्यूशन भी, ग्रीफ का सोल्यूशन भी शादी था। हर एक सोल्यूशन ही शादी है हमारे। समझ गए ना? ओके, या आई एम गेटिंग। तो यही मैं इसके साथ दिखाना चाहता था कि देखो, हर एक प्रॉब्लम आती है लाइफ में, शादी कर लो। एक बार मैं बता रहा हूँ कि मेरी गाड़ी में मुझे कुछ ढूंढ नहीं रहा था, तो मुझे किसी रिलेटिव ने बोला तुम तो बस शादी कर लो। तो मैंने सोचा कोई लेडी आएगी मुझे हेल्प करेगी। नहीं, क्या इससे क्या लगता है, सुनने में लगता है कि क्या लाइफ हमारी पनौती है कि किसी के आने से हमारी लाइफ सुधर जाएगी? ये तो है ना, हम कहते हैं ना सुधर जाएगी आपकी लाइफ किसी के आने से। खुशी हम दूसरे इंसान में क्यों ढूंढते हैं जी? पहले तो आपने अंदर में खुशी देखो, व्हाट मेक्स यू हैप्पी। अपने अंदर झांको, देखो कि आप खुद क्या कर सकते हैं। मेरी बात उस दिन ही किसी से हुई 2 दिन पहले जो फिल्म में है, और उन्होंने मुझे बोला हाँ मैं पार्टनर ढूंढना चाहती हूँ, मुझे मिल नहीं रहा, ये वो सब कुछ। चलो आई एग्री, ये नहीं मैं बोला ना ढूंढो पार्टनर जी, पर हम हमेशा वेट करते हैं कि और कोई आके हमें खुशी दे। और भी कोई बोले। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? पायल, किसी के आने से नहीं होता है, बट आई थिंक किसी को देने से भी तो खुशी मिलती है। हाँ, ये भी है। ये एंगल अगर आप देखो तो खुशी है ही लेने देने का नाम, वही तो है। तो अगर आप किसी को खुशी दे रहे हो तो आपको भी खुशी मिल रही है, तो इन अ वे आप ले भी रहे हो, आप दे भी रहे हो खुशी। बट अगेन मैं पूरा अग्री करती हूँ कि हर किसी को यह अधिकार है कि वो अपने लाइफ के फैसले करे, अपनी खुशी डिसाइड करे कि कहाँ है। एब्सोल्युटली मैं किसी उसमें पॉइंट पे जाके डिसाइड करे कि यस, मैं ये नहीं कह रही कि शादी इज द ओनली सोल्यूशन इन लाइफ फॉर एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम एक कंपेनियनशिप, एक पर्सन है जब यू गो एंड यू शेयर योर इमोशंस, यू शेयर एवरीथिंग, जो आप कई बार किसी और के साथ नहीं कर सकते हो। एंड बट अगेन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मैं हरीश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अग्री करती हूँ। पर्सनल चॉइसेस होनी चाहिए सर। अधिकार इज द राइट वर्ड। मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, पर अधिकार इज एब्सोल्युटली द राइट वर्ड जो आपने बोला, क्योंकि यही हमें नहीं दिया जाता।
अपनी बात नहीं पर्टिकुलरली कर रहा है, तो हमारी सोसाइटी में। और आपने जैसे बोला कंपेनियनशिप को भी मैंने बहुत डीपली देखा है इस फिल्म में, और हमें ये इल्यूजन दिया जाता है कि कंपेनियनशिप होगा, घर आओगे, अच्छी तरह से कोई तुम्हारे लिए खाना बनाएगा, तुम्हें पूछेगा क्या हाल है। और एक लेडी है जो मेरी फ्रेंड है, उसकी डॉक्यूमेंट्री में हमने जो इंटरव्यू, उसने बोला कि मेरे हस्बैंड की तो मेंटल कैपेसिटी चली गई। हम ये भी नहीं फैक्टरिंग करते कि कुछ हो भी सकता है, तो हमें उनको उल्टा इमोशनल सपोर्ट देना पड़ता है। ये मैं बोला कुछ बुरा है ये, पर हम यही इल्यूजन आइडिया के साथ जीते रहते हैं कि ये आइडियल लाइफ। और देखो मुझे खुशी कहाँ मिली, मुझे खुशी कई बातों में मिली, पर एक मेरा डॉग है जो मेरा चॉकलेट लैब्राडोर है, जो आपने देखा प्रीमियर पे, पैंचो। तो मैं उनको आपको बताना चाहता थोड़ा सा उसके बारे में कि जब वो आया पैंचो मेरी लाइफ में, तो उसके साथ ना पूरी लाइफ ही बदल गई। एक तो डिसिप्लिन और भी बढ़ गया, लोग और मिलने लगे, क्योंकि डॉग को ना घुमाने में ही आपको इतनी दुनिया मिल जाती है जो तुम कभी मिलते ही नहीं। इतने फ्रेंड्स उसके साथ बन गए, एक अलग सी ही खुशी मिल गई। लेकिन एंड ऑफ द डे आपकी फिल्म में आपने अपनी बायोग्राफी बनाई है। इट्स अबाउट यू, इट्स अबाउट द मे बी अ स्टोरी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, दे आर गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन मे बी, और वो फिल्म कुछ दिखाती है जो हम चाहते हैं, आप सब चाहते हैं कि लोग एक बार जाके उसे देखें ज़रूर। सो पायल, व्हाट इज़ योर कंक्लूजन ऑन द स्टोरी, बिकॉज वी गॉट 3 minutes लेफ्ट। जो ये फिल्म है आपको ठीक है रिश्तों के बारे में बताएगी, पर आपको अपने देश वापस भी ले जाएगी, चाहे आप इंडिया में बैठे हो, पाकिस्तान में बैठे हो, दुबई में बैठे हो, क्योंकि सारा कल्चर एक है जी। तो आपको उन गलियों की यादें आ जाएंगी, आपको वो ताजगी आ जाएगी उधर के फील की और उसके एटमॉस्फेयर की। तो उसकी रिफ्रेशिंग आइडिया तो बहुत अच्छा है ही है, और साथ में आपको देखना इसलिए चाहिए क्योंकि एक आर्ट अप्रिशिएट करने वाली चीज़ होती है। बेशक। और आर्ट अप्रिशिएट तब भी करो जब उसका कोई मायने हो जिंदगी में, और ये फिल्म आपको उस जिंदगी के मायने हर तरह से दिखाता है। चाहे वो शादी करो ना करो, खुश हो, दुखी हो, या प्यार करते हो या नफरत करते हो या दिल तोड़ते हो, ये हर एक मायने को एक्सप्लेन करता है। अगर इसको कंक्लूड इस तरह किया जाए कि अगर जो भी जाके फिल्म देखता है और ये सोचे कि अगर मैंने शादी ना की होती तो शायद मैं भी आज यहाँ पर होता या मैं होती, तो एटलीस्ट उनको एक इमेजिनेटरी पावर मिल जाएगी कि चलो कोई ना, हम भी लेकिन अगर ये रिग्रेट ना होता कि अगर मेरी शादी ना होती तो मैं शायद तबाह बर्बाद हो जाता हूँ, ऐसा ना होता तो आज मैं एक शायद खुशी की ज़िंदगी जी रहा होता है, जी रही होती है। एंड ऑफ द डे इट्स पर्सनल चॉइसेस सबकी हैं। वी गॉट शॉर्ट टाइम लेफ्ट। कौन इन्फॉर्मेशन देगा? पहला आप देंगी कि फिल्म अब कहाँ पे आपको ये फिल्म हो रही है? अभी जो इसका वर्ल्ड टूर स्टार्ट हुआ है, ये नॉटिंघम से स्टार्ट हुआ है, और ये फिल्म लगी हुई है आर्क सिनेमा हकनल में, और इसके जो टिकट्स है आर्क सिनेमा के वेबसाइट से मिल जाएंगे, और सिर्फ 4 शोइंग है इन द नेक्स्ट 4 days स्टार्टिंग टुमारो। Is it once in a day? Once in a day. Okay. That is it. So you will only have a chance to watch it now. Right. And the timings are on the screen, और आपने अभी वेबसाइट पे भी, अपने वेबसाइट पे भी डाली है, तो आप मिस मत करो, क्योंकि इंटरेस्टिंग है, क्रिस्पी है, मजेदार है, और आंखें खोलने वाला है। हाँ, there is a fun in there. Yeah. The fun, थोड़ी बहुत entertainment भी है. And then he's agreed now. Music भी उसमें है, म्यूजिक भी है obviously. आप जब ये फिल्म देखोगे आपको कहीं ना कहीं वो इंसान नॉटिंघम में दिख जाएगा, तो आप ये सोचिए कि आप शायद लोकल सेलिब्रिटीज के साथ मिल रहे हैं। और ये ना भूलें कि जो भी हमारे लिसनर्स हैं सारे उनको बताते चलें, जो कि हम ज़ाहिर मीडिया और प्रोडक्शन इंडस्ट्री में है, एंड वी अंडरस्टैंड होपफुली यू डू कि कोई भी चीज़ बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है, बहुत ज़्यादा इसमें फाइनेंस और बहुत सी टीम इन्वॉल्व होते हैं, डेडिकेटेड लोग होते हैं जो कि अपनी अपनी डिपार्टमेंट से होते हैं। दे आर प्रोफेशनल्स एंड स्पेशलाइज इन देयर एरिया, और ये सब कुछ मिल के बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे ही मेंशन 3 to 4 years। तो जब जाके एक चीज़ अगर हरीश ने बनाई है तो आप सब जाके एक बार उसे ज़रूर देखिए, और इसको हमें प्रमोट करना चाहिए, हमारे लोकल आर्ट को भी और हमारी लोकल इंडस्ट्री को भी, मीडिया इंडस्ट्री को भी, ताकि अगर और कोई बनाना चाहता है अपने बारे में फिल्म, या फिर उसके पास कोई ऐसी ट्रू बेस्ड स्टोरीज़ हैं, क्योंकि देखो ट्रू बेस्ड स्टोरीज़ आर ऑलवेज इंटरेस्टिंग, क्योंकि हकीकत में हुआ क्या था। जैसे अब इंडिया के धोनी पे बनी हुई और न जाने बहुत सारी हैं, आई एम नॉट गोना मेक द होल लिस्ट ऑफ दैट, तो देखनी ज़रूर चाहिए। देयर इज़ अ गाय फ्रॉम नॉटिंघम, हरीश,
उसने अपनी फिल्म बनाई है जिन्होंने आज तक शादी नहीं की, और उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ था, और वो बहुत खुश हैं। हाँ, और बहुत खुश। इट्स इंस्पायरिंग। कल की शो का टाइमिंग बता दीजिए। कल की शो का टाइमिंग है 7:30 PM, आर्क सिनेमा हकनल। ठीक है। ऑन द वेबसाइट टिकट्स आर अवेलेबल। फिर उसके बाद सैटरडे और संडे को है 5:45। Friday and Saturday. सॉरी, Friday, फ्राइडे एंड Friday. सैटरडे, एंड जो संडे को है वो 3:10 को है। सो डू नॉट मिस एंड वॉच इट प्लीज। और मैं sorry very quickly, करक चाय जो कड़क चाय वहाँ पर आपको पीने को मिलेगी। हाँ मिलेगी, यही मैं बोला चाहता, करक चाय कड़क और चाय भी मिलेगी, आपको पॉपकॉर्न भी मिलेंगे और सारा कुछ हाँ जी, मिलेगा। यही मैं बोलना चाहता था। Thank you very much, everyone. Thank you. I'm going to put your feathers down, and आप सुन रहे फजा 97.1 FM. This is Zaki Khan, Point to be noted में हम आपको लिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की जानिब, और उम्मीद रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटें और नफ़रतें दूर कीजिए। मोहब्बतें बांटिए, बढ़ाने से, ये बांटने से बढ़ती हैं। और आपसे होगी मुलाकात अगले हफ्ते एक नए शो, एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।